السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بی سی، ایس سی، ایس ٹی اور اقلیتی بہبود کے محکموں کے مکمل بجٹ کا تخمینہ لگاتے ہوئے گرین چینل کے ذریعے فنڈز جاری کریں۔ تلنگانہ کی حکومت نے مختلف کامن انٹرنس امتحانات کے کنوینرز کا تقرر عمل میں لایا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے واضح کیا ہے کہ میڈارم جاترا میں شرکت کے لیے جانے والی خواتین کو مہالکشمی اسکیم کے تحت RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت دستیاب رہے گی۔ بی جے پی کی ریاستی صدر کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس اور BRS کے درمیان خفیہ مفاہمت ہے اور اسی لیے کانگریس حکومت BRS کی بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی میں پس و پیش کر رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ BC، ST، SC اور اقلیتی بہبود کے محکموں کے مکمل بجٹ کا تخمینہ لگاتے ہوئے گرین چینل کے ذریعے فنڈز جاری کریں۔ انہوں نے آج متعلقہ وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ کرائے کی عمارتوں میں چلائے جا رہے اقامتی اسکولوں کی تفصیلات مرتب کریں۔ اقامتی اسکولوں کی ذاتی عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے ہدایت جاری کی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے استفادہ کنندگان کو 1 تولے سونے کی فراہمی کے سلسلے میں تخمینہ جات تیار کریں۔ اس اجلاس میں وزراء پونم پربھاکر اور سیتاکا، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر اور اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے الزام لگایا کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں کانگریس پارٹی فرضی امیدواروں کو کھڑا کر کے BJP کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے جوبلی ہلز کے حلقے کے BRS کارکنوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو ووٹ دینا BJP کو ووٹ دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی انتخابی وعدوں کی تکمیل میں تاخیر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقابل عمل وعدے کر کے کانگریس اقتدار پر آئی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے واضح کیا ہے کہ میڈارم جاترا میں شرکت کے لیے جانے والی خواتین کو مہالکشمی اسکیم کے تحت RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت دستیاب رہے گی۔ 21 فروری سے 24 فروری تک منعقد ہونے والی جاترا میں تیلگو ریاستوں کے علاوہ چھتیس گڑھ، مہاراشٹر، جھارکھنڈ اور دیگر ریاستوں کے عقیدت مند کثیر تعداد میں شرکت کریں گے۔ BJP کی ریاستی صدر کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس اور BRS کے درمیان خفیہ مفاہمت ہے اور اس لیے کانگریس حکومت BRS کی بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی میں پس و پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے آج چیولہ پارلیمانی حلقے کے پارٹی قائدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ کشن ریڈی نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ کسانوں، زرعی مزدوروں اور نوجوانوں خواتین میں بیداری پیدا کریں۔ اس اجلاس میں سابق MP کونڈا وشویشور ریڈی، پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔ تلنگانہ کی حکومت نے مختلف کامن انٹرنس امتحانات کے کنوینرز کا تقرر عمل میں لایا ہے۔ TSEAP سیٹ کے کنوینر کی حیثیت سے پروفیسر کمار، ISET کے کنوینر کی حیثیت سے پروفیسر نرسماچاری اور TSE سیٹ کے کنوینر کی حیثیت سے پروفیسر سری رام وینکٹیش کا تقرر عمل میں آیا ہے۔ پروفیسر وجے لکشمی TS لا سیٹ کی کنوینر ہوں گی۔ اسی طرح پروفیسر منالی کوٹی ایٹ سیٹ کا کنوینر مقرر کیا گیا۔ پروفیسر راجیش کمار TSPE سیٹ کے کنوینر ہوں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دورہ محبوب نگر ملتوی ہو گیا ہے۔ BJP کی ریاستی خازن شانتا کمار نے ایک بیان میں یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ہنگامی مصروفیات کی بنا پر یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دورے کی نئی تاریخ کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ SRT کالونی جواہر اسکول میں میگا جاب فیئر کا انعقاد عمل میں آیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن پارلیمان نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یاقوت پورہ کی جانب سے SRT کالونی یاقوت پورہ جواہر ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں میگا جاب فیئر کا افتتاح کیا۔ جاب فیئر میں مختلف شعبوں کی تقریباً 100 کمپنیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، یاقوت پورہ کے مقامی کارپوریٹرز، مقامی صدور و متعمدین، مقامی مجلس کے سرگرم کارکن، سینکڑوں بے روزگار نوجوان جاب میلے میں شرکت کرتے ہوئے 100 سے زیادہ کمپنیوں میں جاب حاصل کی۔ میں سب سے پہلے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و متعمدین کو، اراکین کو، محبان مجلس کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے خاص طور سے نو منتخب شدہ رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب کو یہ موقع دیا کہ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں یہاں پر جاب میلہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا جہاور اسکول اور کالج میں، اور 1500 سے زائد
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे नौजवानों का, और 100 से ज़्यादा कंपनीज़, 100 से ज़्यादा कंपनीज़ भी यहाँ पर आई हैं। हमारा मकसद एक ही है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में और शहर हैदराबाद और ख़ास तौर से हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, उनको किसी हद तक राहत पहुंचाई जाए, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए ताकि वो अपने ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो ये कोशिश है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन याक़ूतपुरा की जानिब से, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमको इस कोशिश में कामयाबियाँ मिलेंगी। अभी मुझे बताया गया कि कई जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको ऑफ़र लेटर्स भी दिए जा रहे हैं। 2 बजे से ऑफ़र लेटर्स दिए जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि जॉब मिले, नौकरी मिले हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ज़िंदगी के हर शोबेजात में अपने काम कर रही है, खिदमत अंजाम दे रही है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ याक़ूतपुरे के सदर मुतमदीन को और हमारे जाफ़र हुसैन मिराज साहब मेले को और जनाब अयूब साहब को कि उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की इस बिल्डिंग को दिया ताकि हम यहाँ पर इस जॉब फेयर को कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा में भी एक वक्त तय करके वहाँ पर भी इस तरह का एक जॉब फेयर किया जाएगा। पूरी कोशिश यही है कि नौजवानों को सही राह दिखाई जाए, नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं या जो 10th पास भी हैं या जो इंटर पास हैं उनको भी यहाँ पर आकर वो कोशिश करें। और ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के जॉब फेयर में, जॉब मेला में आप आएँ, कोशिश करें जहाँ पर जितने कंपनीज़ आ रही हैं ताकि आपको आपके पसंद और आपकी काबिलियत के मुताबिक। मलारदो पुलिस स्टेशन की हदूद बाबुल रेड्डी नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खानदानी झगड़ों पर बेटे राकेश ने वालिद लक्ष्मी नारायणा 55 साल और मामू श्रीनिवास 60 साल पर हमला करते शदीद जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में बाप बरसरे मौके हलाक हो गया। इसके मामू की हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें 108 में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने राकेश को हिरासत में लेकर पूछगिछ कर रही है। इत्तला मिली है कि बाप ने एक जायदाद फरोख्त की, जिसके बाद बेटा राकेश पैसों का मुतालिबा कर रहा था। वालिद इसकी शराबनोशी से परेशान था। राकेश को पैसा न देने पर इसने बाप का कत्ल कर दिया और सामने रहने वाले अपने मामू को जो बीच बचाव के लिए आया था इस पर भी राड से हमला करते हुए जख्मी कर दिया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मलारदो पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बेगम बाजार मुल्तानीपुरा मस्जिद झाला गिरा वक्फ इमलाक की बाजियाबी की गई। टेनेंट 45 मुरब्बा गज 2 कमरों के मकान पर काबिज था। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद वक्फ बोर्ड ने यह जायदाद वापस ले ली। आज वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन और MRI नामपल्ली मंडल ऑफिस हाजरा परवीन की हिदायत पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार वक्फ बोर्ड टीम के साथ OSD असदुल्ला खान, OSD मोहम्मद आसिफ खान, शुजात अली खान, सर्वेयर वक्फ बोर्ड और वक्फ इंस्पेक्टर हकीम ने जायदाद को अपने कब्जे में ले लिया। देखो जिसकी चीज रही हो ना तो लेकर मेरी रहेगी मैं लूंगा, आपकी रहेंगे आपको लेना पड़ेगा। नहीं अगर आपकी चीज रहेगी तो आपको दूंगा, मैं नहीं बोलते मेरी रहेंगे तो मैं लूंगा। दुनिया का दस्तूर है।
ऑफिशियल देना था ऑफिशियल आके आप वो आते जाते हैं ऑफिस पर आपको देते परेशान खाली वक्त भी आते अपन वक्त वाले ले अभी कुछ है तो अभी प्रॉपर्टी भी दीजिए आप रिटर्न कोई आप दीजिए ना, आप ये लगा रहे बोर्ड तो मेरे देव ना था देने तो लिखा थे ऑफिसर के वो जाओ भाई हाईकोर्ट का जजमेंट है, हार गए पेंटिंग है अब आपके ने जो है अब इसका ये बात निकाला था, पूरा नहीं पता पूरे मुल्तान में पूरे क्या है, आपकी चीज क्या है क्या नहीं, ऑलरेडी मेरे डॉक्यूमेंट मेरे को दिए, आइए आके मिलो मेरे जो डॉक्यूमेंट है ना मेरे को दिए तो आपको मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बोर्ड दिए। के आर्डर के हिसाब से आके बोर्ड लगाया आपके क्या है आपके डॉक्यूमेंट लेके आके बताओ हम अपना निकाल रहे हैं अच्छा तो पहले से खाली है सेल नंबर डालो डेट डालो शेख क्या नाम है मंसूर सुगन सर वालेकुम सलाम कहाँ हैं सर अच्छा ठीक है बस కాల్ టికెట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ టికెట్ టేకన్ ఓవర్ హలో హ్యాండ్ ఓవర్ ఇక్కడ హ్యాండ్ ఓవర్ అని హ్యాండ్ ఓవర్ बाय मी बाहर था हैंडेड ओवर बाय मी वो बोर्ड देख जाओ ఇంకోటి ఇద్దరు సంతకాలు మేడం इंस्पेक्टर साहब टेकन ओवर था वो क्या बोलते हैं वो टेकन ओवर दी पोजीशन टेकन ओवर कोई मुल्तानीपुरा बेगम बाजार मंडल वाले इंस्पेक्टर in my presence अच्छा नारे का पिछला ना गलत है सही करना कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद कोटा श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में सरकारी महकमों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में साइबराबाद के सीपी अविनाश मोहंती, रचाकुंडे के सीपी सुधीर बाबू, एचएमडीए कमिश्नर दाना किशोर, जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज, ट्राई कमिश्नर हैदराबाद के जीएचएमसी अहदेदार रंगारेड्डी संगारेड्डी या दादरी कलेक्टर्स के साथ ट्रैफिक, मेट्रो रेल, वाटर बोर्ड, बिजली, एचएमडीए महकमे के अफसरान ने शिरकत की। अहदेदारान मीटिंग में हैदराबाद शहर में ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल के हल और दीगर निफाज पर तबादला ख्याल किया। All the issues which concerns GHMC irrespective of departments that are being discussed here across the table solutions are also being given. So I welcome all the other HODs who have come here. So last time also we had the meetings in the month of August where we had discussed. Here, Anudeep, already not here yet. Anudeep? Anudeep coming. Chair. What we will do is just quickly sir about just take up the action points whatever action we can itemize and just run through because most of the points will again repeat. And then there's a short we will discuss this the identification of land for the dumping yard. Because GHMC limits we don't have sufficient land for the yard. So I requested. You have taken the visual. Thank you. ना बैक को दिया ना बैक बैक So please, let us proceed with the meeting. Please. Anna, please. We just minutes of the last meeting and just quickly take to because they are going to discuss it again. Basically, Rangareddy, Mutual, Sangareddy and Yadav. Anna, Anna. Lands and Chalo. also Anna, please. Yes, collectors are also identified lands.
So when we come to the same, we discuss that this needs to be conducted. Also, we discussed last time it has to be conducted regularly, especially in city. So individual issues, we discussed that it is not taken as clear and convergence unless there is no consensus right at the zone level. So the third one is regarding the traffic police in regarding crossing of dividers, Uppal Saiwa crossing accidents and inconvenience was raised at the time. So zebra crossing and the increased law enforcement was what suggested and agreed upon with the police. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन ने आज रेड हिल्स के कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के साथ नामपल्ली हल्के के तहत शाही मस्जिद बागजामा पब्लिक गार्डन का मुआयना किया। हम यहाँ पर आकर जो शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन है यहाँ के रमज़ान के इंतज़ामात का जायज़ा लिए, पूरी मुकम्मल तौर पर यहाँ के ज़िम्मेदारों से बात हुई। यहाँ पर हमने बैठकर मौलाना एहसन साहब इमाम ख़तीब शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन से भी मुलाकात हुई और उनसे भी पूरे तफसीलात लिए। इंशाअल्लाह हर साल की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे क़रीबन 13,70,000 की लागत से यहाँ शेड बनाया जाएगा, ख़ास तौर से रमज़ान के मुसल्लियों के लिए। और यहाँ पर जो नया सैंक्शन क़रीबन 12.5 लाख का नए टॉयलेट ब्लॉक का हुआ, वो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद उसका काम शुरू होगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जब शेड पड़ जाएगा तो यहाँ पर एक ख़ास रिक्वायरमेंट ये भी बताई गई कि यहाँ पे ज़्यादा कूलर्स और फैंस की ज़रूरत है। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से जो अहदेदार आए हैं उनके सामने ये बात रख दी गई है और इंशाल्लाह मैं उसको फॉलो अप करूँगा और कोशिश की पूरी तौर पे ये करेंगे कि ज़्यादा एयर कूलर्स, ज़्यादा सीलिंग फैंस और एक जनरेटर का भी इंतज़ाम यहाँ पे रमज़ान मुबारक के मौके पे यहाँ पे रहेगा। स्ट्रीट लाइटिंग के ताल्लुक से जो टेम्पररी लाइटिंग रमज़ान मुबारक में यहाँ पे नाज़रीन किराम, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत करीब है, रजब का महीना शुरू हो गया है। शब मेराज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब है। रमज़ान की तैयारियाँ पूरे दुनिया में शुरू हो चुकी हैं और फिर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर हैदराबाद दक्कन के 2 अहम तरीन मसाजिद मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़यामा हुकूमत के तहत आती हैं और हमारी शाही मस्जिद बाग़यामा हल्के नामपल्ली में है। तो इसी मुनासिबत से हमारे इस इलाक़े के एमएलए साहब मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब हमारी मस्जिद तशरीफ़ लाए थे और तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के तमाम कामों की अंजामदही का तयक़्क़ुन उन्होंने दिया है। जनाब मुनीर कुरैशी साहब, मोहतरम जनाब मोहसिन साहब हमारे साथ हैं और ख़ास तौर पर हमारे कॉरपोरेटर साहब यहाँ के मोहतरम जनाब आरिफ रिजवान साहब साथ हैं और दीगर मुसल्लियान किराम की सामने आपकी गुलपोशी भी की गई, क्योंकि पहली मरतबा आप कामयाबी के बाद मस्जिद को तशरीफ़ लाए, तो इस वजह से यहाँ पर बालापुर पुलिस ने 24 घंटों के अंदर कत्ल की कोशिश के केस का पर्दाफाश किया और 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। 27 जनवरी 2024 को बालापुर की क्राइम टीम ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जो पहले से सोचे समझे साजिश के तहत मोहम्मद नामी शख्स के कत्ल की कोशिश में मुलविस थे। खदीर बारकबा, मोहम्मद खालिद और शेख मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया और शाहरुख गुड्डू शेख मफरूर बताया जाता है। खातिना हमले की वजह मोहम्मद जो आदि मुजरिम है की जानिब से हमलावरों को हरासानी बताई जाती। कल शाम में 26 जनवरी 4:30 बजे को पीर के मंडी में अपना अमीना ये मस्जिद के सामने अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ। एक महताबुद्दीन बोल के इनको उनका दोस्त है कदीर और खलील, खालिद, मोहम्मद, शाहरुख, ये चारों ये गांजा के बारे में इन्होंने डिमांड करे बोल के और एवन जो है कदीर बराक इनका फादर को मारा बोल के इसको कैसे भी ख़त्म करने के प्लान करके इन लोगों चारों मिलके चाकुओं से राडों से मार के गए। जब भी उनका इंजर्ड अपना मोहम्मद मेहताबुद्दीन इनका बीवी कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन में, उनका ऊपर हम लोग केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे। इन्वेस्टिगेशन में हमारा टीम जो है जानी और महेंद्र, सईदुल ऐसा और क्राइम टीम हमारा स्टाफ पूरा को एक इंफॉर्मेशन आया आज सुबह में यवन का घर पे है बोल के इन लोगों को तीनों को आज सुबह में अरेस्ट करे। वो जो हथियार है उनको मारे सो चाकुओं से और राड को सबको हम लोग सीज करे, अब अरेस्ट करके उनको कोर्ट को भिजा रहे। इसका ऊपर हमारा डीसीपी मैडम और एसीपी साहब का डायरेक्शन में हमारा टीम एसआई और स्टाफ पूरा अच्छा काम कर रहे। उन लोगों को रिवार्ड से भी साहब लोगों ने देने के है।
कि कुछ पुराने केसेस है क्या था इस केस के? इन लोगों का कुछ भी नहीं है पुराना केसेस, अक्यूड सब नया है। और गांजा का केस ये इंजर्ड पर्सन मेहताबुद्दीन का ऊपर एक गांजा केस है अपना बालापुर पुलिस स्टेशन। ये लोग दोस्त है सर पूरे? पूरा दोस्त है, उन्होंने ऑटो चलाता है, अब अक्यूड भी A1 ऑटो चलाता है, पूरा दोस्त है जी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।